Good morning, everyone. It's your English class, and today we are going to study about informal letters. Right? Along with this, we will understand the diary entry also. Okay. So, dear students, you know that there are two types of letters. One is called formal and second is called informal. तो लेटर्स जो होते हैं वो हमारे दो तरह के होते हैं, एक तो होते हैं हमारे फॉर्मल और एक होते हैं इनफॉर्मल, राइट? So to whom if we have to send a letter, and to whom we are going to send, if with that person our relation is formal, so that letter is called formal letter. And if our relation with that person is informal, so that letter is called informal letter. यानी कि अगर हम ऐसे पर्सन को लेटर लिखने वाले हैं जिसके साथ हमारा रिलेशन जो फॉर्मल होता है, इसके साथ हम औपचारिकता करते हैं, राइट? जैसे हम अपने स्कूल प्रिंसिपल मैम या सर को लेटर लिखते हैं, अपने क्लास इंचार्ज को लिखते हैं, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को लेटर लिखते हैं, तो वो लेटर्स कहलाते हैं हमारे फॉर्मल लेटर्स. बट अगर वी हैव टू राइट अ लेटर टू आवर रिलेटिव्स, टू आवर फ्रेंड्स, टू आवर सिबलिंग्स, टू आवर पेरेंट्स, so those letters are called informal letters. Why? Because with them our relations are informal. तो उनके साथ हमारे रिलेशन यानी कि हमारे पेरेंट्स के साथ, हमारे फ्रेंड्स के साथ, हमारे रिलेटिव्स के साथ जो हमारे रिलेशंस होते हैं वो फ्रैंक होते हैं, वो इनफॉर्मल होते हैं, फॉर्मेलिटी नहीं होती. तो इसलिए इस तरह की रिलेशन को अगर हमें लेटर लिखना है जिनके साथ हमारा रिलेशन फ्रेंडली होता है, तो वो लेटर्स कहलाते हैं इनफॉर्मल. So dear students, today basically we are going to understand about the informal letters, right? So when you will start writing a letter, so first of all you need to write the address of the sender, as you can see on the screen. So first of all, left side of the paper page you need to write the sender address. Means सबसे पहले आपको लिखने वाले का जो उस लेटर को लिख रहा होता है उसका आपने एड्रेस लिखना, right? While writing the address, you need to remember one thing: you will not mention the name of the person. जो उस लेटर को लिख रहा है आपने उस पर्सन का नेम वहां पे नहीं लिखा, right? Next thing, after writing the letter, then you have to skip one line. आपको एक लाइन skip करनी है, एक लाइन छोड़नी है एड्रेस लिखने के बाद, right? Date you have to write, right? This is the famous format. So first of all you will write the name of the month, right? And whenever we write the name of the month, so first letter is capitalized always. So this point you need to remember: first letter of the month name you need to make it capital, right? Then you need to mention the date, then comma, then the year, right? Again you have to leave one line, right? Then salutation you will write. In salutation you can write my dear friend, my dear mother, or dear mother. In this way you can write the salutation. Clear? Then the main message means body of the letter you have to write. Means whatever you want to say through that letter you need to write there. Okay, after that you need to write the subscription. In subscription you need to write yours affectionately, yours sincerely, your lovingly. So these words you can mention. Then you have to write your name and signature, right? This is the format of writing the informal letter. Again understand this: first of all you need to write the address of the sender, यानी कि आपको अपना एड्रेस लिखना है. अपने एड्रेस जब लिखोगे वहां पे एक बात ध्यान रखनी है कि आप अपना नेम नहीं लिखोगे, जस्ट आपने अपना एड्रेस लिखना है. उसके बाद one line you have to skip, right? Then you have to write the date. Again you have to leave one line. Then you have to write the salutation. In salutation you can write my dear friend also. Then body of the letter means main message you will write here. Then subscription you will write here. In subscription you can write yours faithfully, yours affectionately, yours sincerely, your lovingly. So these words you can mention. After that you need to write your name and signature, right? So this is the format of writing the informal letters. So dear students, 3 or 4 letters I'll send. Those letters you have to write in your fair notebook, and one by one you need to write those letters. Okay, so these letter I will send. Today's
today's homework. It will be sent in today's homework, right? So first letter is that write a letter to your friend inviting him to your brother's marriage. So आपने इमेजिन करना है कि आपके भाई की शादी है और आपने अपने फ्रेंड को शादी के लिए इनविटेशन भेजना है, इनवाइट करना है, उसके रिगार्डिंग आपने लेटर लिखना है, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द sender address, means yours address you have to write there. So 16 comma, that's a house number, Model Town, Karnal. So whatever your address is, that you can mention. So April 20, 2022. So according to today's date, you need to mention here. आज की date के according यहाँ पे अपने mention कर देना है, right? Then dear Rajesh means what is your friend name, you can mention here. Then body of the letter you will write here, means what message you want to convey, you will write. So in this we have written, you will be delighted to know that, आप बहुत ही delighted हो जाओगे, खुश हो जाओगे इस बात को जानकर, क्या की, that my brother's marriage is on April 30, 2022. तो जो मेरे भाई की शादी है वो April 30 को है, right? The girl he is marrying is a doctor. जो जिस लड़की से वो शादी कर रहा है वो एक डॉक्टर है, and belongs to a well-to-do family, और एक बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करती है. The celebration begins from April 30. तो हम उसको बता रहे हैं कि जो सेलिब्रेशन है, जो फंक्शन है, वो 30 अप्रैल से शुरू हो जाएगा. My parents will be pleased. मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हो जाएंगे. If you join us on April 30. अगर आप 30 अप्रैल को हमें ज्वाइन करते हो, यानी कि 30 अप्रैल को अगर यहाँ पे आप आ जाते हो तो मेरे पेरेंट्स बहुत खुश होंगे. And assist us in making decent arrangement to receive and entertain the wedding guests. तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि अगर आप 30 अप्रैल को आ जाते हो और जो अरेंजमेंट है उनको रिसीव करने की और उनको एंटरटेन करने की, उसमें अगर हेल्प करोगे तो मेरे पेरेंट्स बहुत खुश हो जाएंगे. आई होप यू विल कम ऑन April 30 विद अंकल एंड आंट. तो हम कह रहे हैं कि मुझे पूरी उम्मीद है कि अंकल और आंट के साथ आप 30 अप्रैल को आ जाओ. Yours lovingly, then you need to write your name and signature, right? This means in this you need to remember, you will write here yours, YOURS, right? Not 4-letter word, means YOUR. 5-letter word you need to write here yours, YOURS, right? Now let's understand the second letter, second informal letters. So second is that you have got admitted to the residential school for the first time. आप एक रेजिडेंशियल स्कूल में, यानी कि जो जहाँ पे हम पढ़ते भी हैं, रहते भी हैं, उस स्कूल में आप एडमिशन लेते हो. Your mother is very worried about your well-being. तो तुम्हारी जो मदर है तुम्हारे लिए बहुत ही परेशान है, चिंतित है. Write a letter to your mother telling her that your stay at hostel is very comfortable, joyous. आपने अपने मदर को एक लेटर लिखना है जिसमें आपने बताना है कि आप हॉस्टल में रहते हो जो बहुत ही कंफर्टेबल है और बहुत ही जोयस, यानी कि हैप्पी, मींस हैप्पीनेस है वहां पे. सेम, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट द सेंडर एड्रेस, मींस सबसे पहले आपने सेंडर एड्रेस लिखना, राइट? देन डेट, देन माय डियर मदर, राइट? इन दिस वे यू विल राइट. देन main body of the letter you will mention here. So in this we have written here, I am fine here. मैं यहाँ पे बिल्कुल ठीक हूँ. Hope that, मुझे पूरी आशा है. You are sailing in the same boat. Sailing in the same boat एक idiom होता है, इसका मीनिंग होता है कि दोनों का एक ही कंडीशन में होना. तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि I am fine here और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप भी वहाँ पे ठीक होंगे, right? Next line, you will be glad to know that I am enjoying life amidst the amiable hostel superintendent and cooperative boarders. तो boarders का मतलब होता है कि हॉस्टल में रहने वाले जो बच्चे होते हैं उनको boarders बोलते हैं. डे बोर्डिंग स्कूल में जो रहते हैं उनको boarders बोलते हैं, right? Superintendents means जो उस हॉस्टल की केयर करता है, right? और amiable means जेंटल नेचर वाला पर्सन, जेंटल नेचर वाला कोई इन्वायरमेंट,
राइट। तो हम यहाँ पे कहना चाहते हैं कि आपको बहुत जान के खुशी होगी कि यहाँ पे मैं बहुत अच्छी लाइफ स्पेंड कर रहा हूँ। जो स्टूडेंट हैं वो बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव हैं, जो बोर्डर्स हैं वो भी बहुत कोऑपरेटिव। The congenial atmosphere of the boarding complex instilled confidence and discipline in the teenagers. Teenagers बोलते हैं लगभग 12, 13 या 14 साल के बच्चों को teenagers बोला जाता है। तो हम यहाँ पे कह रहे हैं congenial atmosphere, यानी कि जो यहाँ का atmosphere है, यानी कि suitable atmosphere जो यहाँ का है, बहुत अच्छे atmosphere जो यहाँ का है, उसकी वजह से हमारे अंदर confidence बढ़ता है। Instills का मतलब होता है put gradually something, यानी किसी के अंदर कोई चीज डालना, उसके अंदर उसको अंडरस्टैंड करवाना, राइट। तो यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, एनवायरनमेंट है, वो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस भर रहा है और डिसिप्लिन भर रहा है हम टीनेजर्स के अंदर। The hostel wardens inculcate the pupil with the sense of responsibility by assigning them various administrative assignments. जो हॉस्टल के वार्डन्स हैं वो बहुत हमारे जो प्यूपिल्स होते हैं, यानी कि जो हम स्टूडेंट्स होते हैं, उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी की सेंस को समझाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग को देने के लिए बहुत सारी असाइनमेंट देते हैं। वो असाइनमेंट रिलेटेड टू इंस्टीट्यूट होती हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव होती हैं। The system is so transparent, जो सिस्टम है बहुत ही ट्रांसपेरेंट है, किसी के साथ बायस नहीं होता यहाँ पे, that every student of the school is involved in the decision making process. इससे क्या हो रहा है कि हर स्टूडेंट जो है वो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उसमें इन्वॉल्व हो रहा है, इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। I am delighted that, मैं इस बात से बहुत खुश हूँ that I decided to join an institute that respects the integrity of each individual. तो individual मतलब हर एक पर्सन, यानी कि हर एक स्टूडेंट, राइट। और इंटीग्रिटी का मतलब होता है having strong moral principle, means honesty, right? तो हम यहाँ पे कहना चाहते हैं कि I am delighted that I decided to join an institute that respects the integrity of each individual, जो सभी इंडिविजुअल की इंटीग्रिटी की रिस्पेक्ट करता है। I feel convinced that school will metamorphose me completely. Metamorphose का मतलब होता है किसी के कैरेक्टर में, पर्सनैलिटी में चेंज करना पॉजिटिवली। तो हम ये कहना चाहते हैं कि मुझे ऐसा फील होता है कि स्कूल का एनवायरनमेंट है मुझ में बहुत अच्छा चेंज लाएगा। माय डियर मदर, यू नीड नॉट वरी अबाउट फूड ऑल्सो। तो हम कहना चाह रहे हैं कि मदर, आपको फूड के खाने के बारे में भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। दे सर्व वेरी डिलीशियस फूड इन अ हाइजेनिक मैनर। तो जो फूड वो सर्व करते हैं वो डिलीशियस होता है, बहुत ही हाइजेनिक होता है। इन द लास्ट, यूर अफेक्शनेटली केशव, right? Your name and signature you need to mention, right? So that is the second letter. Now let's come on the third letter. That is also informal letter. So there was a talent hunt program in your school. तो आपने इमेजिन करना है कि आपके स्कूल में टैलेंट हंट प्रोग्राम था। You participated in the group dance and gave a fabulous show. यानी कि आपने उसमें ग्रुप डांस में पार्टिसिपेट किया और आपने एक जबरदस्त परफॉर्मेंस दी अपनी। Write a letter to your sister describing the function organizing in your school campus. आपने अपनी सिस्टर को एक लेटर लिखना है जिसमें आपने बताना है कि आपने जो फंक्शन हुआ उसमें आपकी जो क्या परफॉर्मेंस थी उसके बारे में सब कुछ डिस्क्राइब करना है आपको अपनी सिस्टर को। Same dear students, first of all you will write the address of the sender, then again you will leave one line, then date according to that day on which day you are going to write a letter, then salutation, then body of the letter, means main message you will write. Okay, so in this we have written that, let's understand this. I congratulate you on getting good marks in the first terminal exams. तो आप अपनी सिस्टर को बोल रहे हो कि मैं आपको बधाई देता हूं कि आपने जो फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम्स होते हैं उसमें आपने अच्छे मार्क्स प्राप्त किए। I know you will bring laurels to the family. Laurels का मतलब होता है honor and praise. तो मुझे इस बात का पता है तुम अपनी फैमिली के लिए ऑनर और प्रेज लेके आओगे अपने काम की वजह से। My dear sister, my school organized a talent search program yesterday. तो हम कह रहे हैं अपनी सिस्टर को कि हमारे स्कूल ने एक टैलेंट सर्च प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था कल। All the students participated in this function enthusiastically. तो सभी स्टूडेंट्स ने enthusiastically यानी कि बड़े ही उत्साह के साथ, एक्साइटमेंट के साथ इस फंक्शन में पार्टिसिपेट किया।
I also took part in the group dance and got the first position. तो हम ये कह रहे हैं कि मैंने भी ग्रुप डांस में पार्टिसिपेट किया और हमें फर्स्ट पोजीशन यानी कि फर्स्ट प्राइज हमें मिला. We will be awarded in annual function on the stage. हम कह रहे हैं कि जब वो एनुअल फंक्शन होगा तो तब हमें अवॉर्डेड किया जाएगा. There were 8 teams in the competition. तो हम कह रहे हैं कि जो कंपटीशन था उसमें पार्टिसिपेट करने वाली 8 टीमें थी. तो then but the judges declared our team the winner. but judges ने हमारी टीम को विनर डिक्लेयर किया. I wanted to participate in solo singing also. तो मैं सोलो सिंगिंग, सोलो का मतलब होता है अकेला, तो मैं अकेले जो सिंग करते हैं ऐसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट भी करना चाहता था. But the competition was held at the same time as the group dance competition. तो हम यहाँ पे कह रहे हैं कि जो दोनों कंपटीशन थे वो सेम टाइम पे हुए, सोलो सिंगिंग वाला और ग्रुप डांस कंपटीशन भी, तो मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाया. So I couldn't participate in that. की वजह से मैं उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाया. Tell mother about the same. सारी बातें मदर को भी पता. Give my love to everyone. Yours lovingly. Right? So these were the informal letters. Right? So I hope you must have understood what points we need to remember. So first point, while writing a diary entry, the diary must carry the date, time. Time could also be mentioned. जब हम डायरी एंट्री लिखते हैं तो हमें डेट लिखनी होती है, टाइम भी मेंशन करते हैं. डेट मींस मंथ भी लिखना है, ईयर भी लिखना है, और जिस समय हम वो डायरी एंट्री लिख रहे हैं तो वो हमें टाइम भी लिखना होता है. यूजुअली हम शाम को अपना दिन पूरा होने के बाद डायरी लिखते हैं, अपने एक्सपीरियंस को शेयर करते हैं उसमें, तो इसलिए यूजुअली जो टाइम होता है वो इवनिंग का होता है. सेकेंड पॉइंट, अ डायरी इज रिकॉर्ड ऑफ वंस पर्सनल फीलिंग्स. जो डायरी एंट्री होती है वो किसी की पर्सनल फीलिंग्स का रिकॉर्ड होती है, यानी कि जो आपके साथ हुआ, आपने उस समय क्या फील किया, बेसिकली वो बातें हमें अपनी डायरी एंट्री में लिखनी होती है. Since it is meant for one's personal use, it is written in an informal style. तो ये जो डायरी एंट्री होती है ये पर्सनल यूज के लिए लिखी जाती है, यानी कि किसी को देने के लिए, किसी को दिखाने के लिए नहीं लिखी जाती है, अपने पर्सनल यूज के लिए लिखी जाती है. तो इसलिए जिसका स्टाइल होता है राइटिंग का, इनफॉर्मल होता है. इनफॉर्मल का मतलब होता है कि हमें बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट ग्रामेटिकल रूल्स नहीं यूज करने होते, बहुत लंबी लंबी फॉर्मेशंस नहीं यूज करनी होती, तो इनफॉर्मल स्टाइल में इसको लिखना होता है. सेंटेंसेस नीड नॉट बी कंप्लीट. तो ये बात बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हमारे सेंटेंस ग्रामेटिकली 100% राइट हों, वो पूरे ही हों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये हम अपने लिए लिखते हैं, तो जो लिखने का जो स्टाइल होता है वो इनफॉर्मल होना चाहिए. थर्ड पॉइंट, honesty in expression one's feeling and reaction is absolutely necessary for a good diary entry. तो जब अपनी डायरी एंट्री लिखोगे, अच्छी डायरी एंट्री के लिए आपने अपने रिएक्शंस को, यानी कि जो भी बात लिख रहे हो, जो भी आप इंसिडेंट्स के बारे में बातें बता रहे हो, उस समय क्या आपके रिएक्शंस थे, क्या आपकी फीलिंग्स थी, वो बेसिकली आपने उसमें लिखनी होती, राइट? So let's understand some diary entries are there. These diary entries you need to write in your fair notebook and you will also learn. So first is that, look at the screen. It was your 12th birthday. Write a page in your diary expressing the day's events. So dear students, जब भी हम diary entry लिखते हैं, first of all we need to write, as you can see the format also. First of all you will mention the date, means day also you will mention, date also, month also, year also, then time, then dear diary. So this is the basic format, so you need to use. पहले आप डेट लिखोगे, उस डेट में उस दिन क्या वार है, डेट कौन सी है, मंथ कौन सा है, ईयर कौन सा है, वो लिखोगे. उसके बाद टाइम लिखोगे, यूजुअली हम इवनिंग में लिखते हैं, और उसके बाद सैल्यूटेशन लिखेंगे जैसे हम लेटर्स में लिखते हैं, राइट? फिर जो भी आपने आपके साथ इंसिडेंट हुआ उसमें आपने क्या फील किया, क्या आपके रिएक्शंस थे, आपने बेसिकली वो डायरी एंट्री में लिखने होते, राइट? सो लेट्स सी दैट. आपने इमेजिन करना है कि आपका 12th बर्थडे था और उसी के रिगार्डिंग आपने डायरी एंट्री लिखनी है कि उस दिन क्या क्या आपके साथ हुआ, राइट? सो इट वाज अ स्पेशल डे फॉर मी, माय 12th बर्थडे. तो उत्तर कह रहा है, लिखने वाला कह रहा है कि ये मेरा स्पेशल बर्थडे था, स्पेशल डे था मेरे लिए, क्योंकि उस दिन मेरा जन्मदिन था.
I was on the 7th heaven. तो मैं 7th heaven पे था, यानी कि 7वें आसमान में था, यानी कि मैं बहुत ज्यादा खुश था. Since I was quite excited, I had got up at 6 a.m. तो क्योंकि मैं उधर कह रहा है कि क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था, बहुत ज्यादा हैप्पी था, इसलिए मैं 6 बजे उठ गया था उस दिन. As the custom is, I went straight to my grandparents and parents touched their feet and sought their blessings. तो यहाँ पे उधर कहना चाह रहा है कि जैसे कस्टम होता है, जैसे हमारी फैमिली में एक रिवाज होता है कि जिस दिन ऐसा स्पेशल डे होता है, हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स के दादा दादी के कमरे में जाते हैं, उनके पास जाते हैं, उनके पैरों को छूते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं. तो ऐसा ही मैंने किया. उतर यहाँ पे कह रहा है गैस वर्ड. उसके बाद वो कह रहा है कि गैस करो कि क्या हुआ होगा. इट वॉज अमेजिंग. ये बहुत ही अमेजिंग था, शानदार था. पापा एंड मम्मा हग मी. पापा और मम्मा ने मुझे हग किया, गले लगाया. किस्ड ऑन माई फोरहेड. मेरे फोरहेड पर, माथे पर किस किया. एंड गेव मी माई फेवरेट स्टोरी बुक्स. उसके बाद मेरे पेरेंट्स ने मुझे स्टोरी बुक्स दी. वी वेंट टू द टेम्पल आफ्टर टेकिंग बाथ. सो हम नहाने के बाद हम सभी टेम्पल में भी गए, मंदिर में भी गए. A small party was also held in the evening. तो शाम को एक स्मॉल सी पार्टी भी हुई. All my friends had come. मेरे सभी फ्रेंड्स उसमें आए थे. It was a great fun. ये बहुत ही फन था, हमने यानी कि बहुत मजे किए. I got plenty of gifts too. तो उधर कह रहा है कि मुझे बहुत सारे गिफ्ट्स भी मिले. I can't forget these loving moments. दीपांशु. तो लास्ट में आपने अपना नाम भी लिखा. तो डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा कि हम इंसिडेंट्स के बारे में लिखते हैं डायरी एंट्री में. जो भी हमारे साथ हुआ, हमने वहां पे क्या फील किया, क्या क्या इंसिडेंट्स हुए, वो सारी बातें हमने डायरी एंट्री में लिखनी होती. राइट. सेकंड, suppose you have topped all the sections of class 6 in the final examination. Feeling very happy and excited, you decided to write a page in your diary expressing the exuberant moment. Exuberant का मतलब होता है full of excitement and happiness. तो आपने इमेजिन करना है कि आप 6 क्लास में फाइनल एग्जामिनेशन में आपने टॉप किया, तो उस समय आपकी फीलिंग क्या होगी, क्या एक्साइटमेंट आपने फील की टॉप आने के बाद, वो अपनी डायरी एंट्री में लिखनी है. सेम, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट डेट, टाइम एंड सेलिब्रेशन, डियर डायरी. उसके बाद मेन कंटेंट, बॉडी ऑफ द डायरी एंट्री यू हैव टू राइट. राइट. सो in this we have written today is the most important day for me. हम कह रहे हैं कि आज का दिन मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट डे था. For I have stood first in all the section 6th standard, क्योंकि मैं 6th standard में सभी sections में फर्स्ट आया हूं. Yes, I have done it. हाँ, मैंने कर दिखाया. I am so excited. मैं बहुत ही ज्यादा excited, खुश हूँ. That I can't express in words. मैं इतना ज्यादा हैप्पी हूँ, इतना ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि मैं उनको वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकता, शब्दों में नहीं बयां कर सकता. I had always dreamt of this day. मैंने हमेशा इस दिन के बारे में सपने देखे हैं. And I wanted to feel the excitement of being on the top. और मैं चाहता था कि मैं उस एक्साइटमेंट को फील करूं जो टॉप आने पर होती है, यानी कि क्लास में फर्स्ट करने पर होती है. Everyone is happy. सभी खुश हैं. Mom, Dad, my teachers, my and friends are congratulating me. सभी मुझे बधाई दे रहे हैं. मेरे friends, मेरे teachers, मेरे parents सभी मुझे बधाई दे रहे हैं. I feel on the 7th heaven. मैं 7वें आसमान पे हूँ. ये एक कहावत है, 7वें आसमान पर होना यानी कि बहुत ज्यादा हैप्पी होना, खुश होना. My heartful thanks to my teachers who guided me. तो मेरे टीचर्स का बहुत ही हार्टफुल थैंक यू है, क्योंकि उन्होंने मुझे गाइड किया. एंड मेड मी बिलीव इन माय ओन सेल्फ. और मुझे अपने आप पे विश्वास दिलाया. पापा हैज प्रोमिस्ड टू प्रेजेंट मी अ ब्रांड न्यू हीरो रोकर बाइसिकल टुमारो. तो पापा ने मुझे प्रॉमिस किया है कि कल वो मुझे एक नया साइकिल दिलाएंगे, रोकर साइकिल दिलाएंगे. आई एम डाइंग फॉर दैट मोमेंट. तो मैं उस मोमेंट के लिए मर रहा था, यानी कि मैं उस मोमेंट के लिए बहुत ही ज्यादा आशा कर रहा था. दो द रेस इज नॉट ओवर. हालांकि जो रेस है, यानी कि अच्छे मार्क्स लेने की जो रेस है, वो अभी खत्म नहीं हुई है. आई शैल हैव टू वर्क हार्ड इन फ्यूचर ऑल्सो.
मुझे फ्यूचर में भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी टू मेंटेन दिस पोजीशन इन 7th 8th 9th 10th एंड सो ऑन। तो मुझे बाकी सभी क्लासेस में जो आने वाले क्लासेस हैं 7th में 8th में 9th में, तो उनको भी मेंटेन, वहां पे भी मुझे अच्छी परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी, इस पोजीशन को मेंटेन करना पड़ेगा। आई नो आई कैन डू इट, मुझे पता है मैं ये कर सकता हूँ। Right, so this is all about this secondary entry. In this we have told about our feeling when we get first position in our class, right? So this is a secondary entry. Now let's come on the last and third diary entry. This diary also you have to write and learn. So come on the third diary entry. You are feeling quite happy because your dear grandfather has come home after being treated in a hospital for about 10 days. तो आप बहुत ही अच्छा महसूस कर रहे हो क्योंकि आपके ग्रैंड पेरेंट्स बीमार थे, उनका इलाज हो गया हॉस्पिटल से, 10 दिनों के बाद घर आए हो, तो इसके रिगार्डिंग आप बहुत खुश हो। नाउ यू विश टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम विद हिम एंड टेकिंग केयर ऑफ हिम। अब तुम चाहते हो कि उनके साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड किया जाए और उनका ध्यान रखा जाए। एक्सप्रेस योर फीलिंग्स इन द फॉर्म ऑफ अ डायरी एंट्री। तो डायरी एंट्री लिखनी है इसके रिगार्डिंग कि आपके ग्रैंडफादर हॉस्पिटल में से ठीक होके 10 दिन में हॉस्पिटल में रहे, ठीक होके घर आ गए हैं और आप उनकी अब केयर करना चाहते हो, इसके रिगार्डिंग आपने डायरी एंट्री लिखनी है, राइट? सेम फर्स्ट ऑफ ऑल डेट, टाइम एंड सैल्यूटेशन, देन बॉडी ऑफ द लेटर. So in the body of the letter we have written here, grandpa is back home after spending 10 days in hospital. तो हम डायरी को बता रहे हैं। देखो जैसे हम किसी को अपनी बातें बताते हैं, अपने फ्रेंड को, अपने पेरेंट्स को, वैसे ही डायरी एंट्री में उसको बातें बतानी होती है, रिटर्न फॉर्म में लिखकर बतानी होती है, राइट? सो ग्रैंडपा इज बैक होम आफ्टर स्पेंडिंग 10 days in hospital. मेरे जो ग्रैंडपा मीन्स ग्रैंड पेरेंट मीन्स ग्रैंडफादर, सॉरी, मीन्स दादाजी जो हमारे होते हैं उनको ग्रैंडपा बोलते हैं। तो ग्रैंडपा इज बैक होम आफ्टर स्पेंडिंग 10 days in the hospital. 10 दिन हॉस्पिटल में लगाने के बाद वो घर वापस आ गए। थैंक गॉड, भगवान का शुक्रिया। He is feeling better now and I'm quite happy. अब वो अच्छा महसूस कर रहे हैं और मैं बहुत खुश हूँ। But you see, he has grown quite weak. But आप देख सकते हो, आप फील कर सकते हो कि बहुत ज्यादा वीक हो गए। I understand that he needs special care and attention. तो मैं इस बात को अच्छे से समझता हूँ कि उनको स्पेशल केयर की और अटेंशन की जरूरत है। I am going to do my best. मैं अपना बेस्ट उसमें करने वाला हूँ। I'll spend most of my spare time with him and will take him around for a walk, holding his hand. तो हम कह रहे हैं, यानी कि उधर कहना चाहता है कि मैं अपना टाइम स्पेयर करूंगा उनकी हेल्प करने के लिए और उनको वॉक भी करवाऊंगा उनके हैंड को होल्ड करके। लिटिल केयर एंड लोड्स ऑफ लव हेल्प इन रिकवरिंग फास्ट। तो मेरी केयर से और मेरे प्यार से उनको हेल्प मिलेगी जल्दी रिकवर होने में, जल्दी ठीक होने में। आई नो माई जॉब, मुझे अपनी जॉब का पता है। आई एम फर्म टू डू इट, मैं इस काम को करके रहूंगा, मैं बहुत ही फर्म हूँ। यू विल सी दैट ही विल सून रिकवर, आप देखना कि जल्दी ही ठीक हो जाएगा। अनीश, लास्ट में अपना नाम लिखना, राइट? सो दिस इज ऑल अबाउट डायरी एंट्री एंड letter writing. So dear students, one by one you need to learn the letters and diary entry. Okay,